شادی کے بعد میری زندگی اس طرح سے عذاب بن جائے گی یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شادی سے پہلے میں اپنے گھر والوں کی بے حد لاڈلی تھی، مگر جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے بھائی بھابھی پر بوجھ بن گئی تھی، اور وہ لوگ میرا بوجھ جلد از جلد اپنے سر سے اتار کر پھینکنا چاہتے تھے۔ بھابھی کو میرا وجود ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے۔ ابو کا انتقال تو بھائی کی شادی سے پہلے ہی ہو گیا تھا، مگر ابو کے جانے کے بعد امی بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ میں دن رات امی کی دیکھ بھال کرتی تھی اور اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی۔ امی نے بھائی کی شادی بہت ارمانوں سے کی تھی، مگر بھابھی کو گھر میں آتے ہی میرا وجود کھٹکنے لگا تھا۔ بھائی مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے اور میری ساری فرمائشیں پوری کر دیا کرتے تھے، جب بھی بھابھی مجھ سے چڑا کرتی تھی۔ حالانکہ میں نے بھابھی سے دوستی کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر بھابھی میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، بلکہ مجھے نظر انداز کر کے میرے سامنے سے گزر جایا کرتی تھی۔ بھائی بھابھی کو کچھ کہتے تو بھابھی سارا الزام مجھے ہی دیتی تھی، حالانکہ میں بھابھی کی بہت عزت کرتی تھی اور ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کے سارے کام کر دیا کرتی تھی۔ بھابھی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بھائی مجھ سے بات بھی کرے۔ کبھی اگر بھائی مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتے تو بھابھی گھر میں فساد ڈال دیا کرتی تھی اور میں سہم کر رہ جاتی تھی۔ جب امی کے گھر یہ حالات دیکھے تو امی نے میرا رشتہ خالہ کے بیٹے سے طے کر دیا۔ خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور بہت چاؤ سے مجھے اپنی بہو بنا رہی تھی، مگر بھابھی نے اس رشتے کو بھی توڑوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بھابھی دن رات امی کے کان بھرا کرتی تھی اور انہیں خالہ کے خلاف کرتی رہتی تھی، مگر امی بھی بھابھی کی فطرت سے بہت اچھے سے واقف تھی۔ جب بھی بھابھی کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ جب بھابھی نے دیکھا کہ امی پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے دوسرا راستہ تلاش کیا اور بھائی کے کان بھرنے لگی۔ امی جب بھابھی کی یہ حرکتیں دیکھی تو فوراً سے میری منگنی کر دی اور خالہ سے کہہ دیا کہ وہ جلد ہی میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ خالہ بھی جلد شادی کرنے کے لیے راضی تھی، مگر بھابھی کو میری خوشی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ خالہ کی بچپن سے ہی خواہش تھی کہ میں ان کی بہو بنوں، مگر امی نے اس وقت یہ بات ٹال دی تھی، کیونکہ امی کا ماننا تھا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو جو بھی ان کی رضامندی ہوگی وہی ہوگا۔ جب ہی اس وقت خالہ بھی خاموش ہو گئی، مگر اب ایک بار پھر خالہ ہماری دہلیز پر میرا ہاتھ مانگنے چلی آئی تھی، کیونکہ خالہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ اسی وجہ سے خالہ نے ایک بار پھر امی کے سامنے یہ بات رکھی۔ امی نے جب مجھ سے میری مرضی پوچھی تو میں نے یہ سب امی پر چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں بھی دل ہی دل میں انہیں بہت پسند کرتی تھی، مگر فطری شرم و حیا کی وجہ سے میں نے کبھی زبان سے یا اپنے عمل سے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ مگر اس رشتے کے طے ہو جانے سے میں بے حد خوش تھی، اور میری یہی خوشی بھابھی کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ جب امی میرا رشتہ طے کر رہی تھی تو بھابھی نے لاکھ منع کیا، مگر امی نے بھابھی کی ایک نہیں سنی، تو بھابھی میرے منگیتر کے خلاف میرے بھائی کو بھڑکانے لگی۔ بھائی نے ایک دو بار دبے لفظوں میں امی سے ایسی باتیں کہیں تو امی سمجھ گئی تھی کہ بھائی بھی اپنی بیوی کی لگائی بھجائی میں آ گئے ہیں۔ جب بھی امی نے جلد ہی میری منگنی کر دی اور شادی بھی جلد ہی کرنے کو کہہ دیا تھا۔ جب بھابھی نے یہ دیکھا کہ ان کے سارے حربے ناکام ہو چکے ہیں تو وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئی، کیونکہ اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مگر اب بھابھی کبھی کبھی امی کی غیر موجودگی میں مجھ سے کہنے لگی کہ ضرور تمہارا اپنے منگیتر کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہوگا، جب ہی تو اتنی جلدی منگنی ہو گئی اور اب وہ لوگ شادی کرنے پہ بھی راضی ہیں۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں سہم جاتی تھی اور انہیں اپنی صفائیاں دینے لگتی کہ ایسا کچھ نہیں تھا،
मगर मेरी बात सुनकर भाभी तंजिया नजरों से मेरी जानिब देखती और पूरी बात सुने बगैर ही अपने कमरे में चली जाती थी। उनके जाने के बाद मैं कुढ़ती रहती थी, मगर अम्मी को कुछ ना बताती, क्योंकि इस तरह भाभी घर में फसाद खड़ा कर देती। इसी वजह से मैं खामोशी से दिन रात भाभी के ताने सहती रही। भाभी मुझसे कहती कि तुम्हारे करतूत तुम्हारे भाई को बता दूंगी, और मैं हक्का बक्का उनकी शक्ल देखकर रह जाती और सोचती कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये मुझे ऐसे कह रही हैं। मगर भाभी को कुछ भी कहने का हौसला मुझ में बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी जानिब अम्मी की तबीयत भी खराब रहती थी। अगर उन्हें ये सारी बातें बताती तो घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों को कोई नहीं रोक सकता था। जब भी खामोश होकर बैठी रही और भाभी की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई थी और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अम्मी और भाई बहुत चाव और लगन से मेरा जहेज तैयार कर रहे थे। हर चीज मेरी मर्जी और पसंद से ले जा रही थी। भाई ने किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और यही सब भाभी की बर्दाश्त से बाहर था। मगर भाई की वजह से खामोश थी और कुछ कह नहीं पा रही थी। मेरी शादी में 1 महीना रहता था, मगर एक रात अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें रुक रुक के सांस आ रहा था। अम्मी ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। भाई और भाभी अपने कमरे में सो रहे थे। मेरे हाथ पांव फूल गए और मैं फौरन भाई को बुलाने के लिए उनके कमरे में गई। मैं जोर जोर से उनके कमरे का दरवाजा बजा रही थी। इसी असना में भाभी ने कमरे का दरवाजा खोला और इंतहाई दुरुस्ती से मुझसे पूछा कि क्या मसला है, इतनी रात को क्यों कमरे का दरवाजा बजा रही हो। मैंने भाभी से रोते हुए कहा कि अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, आप जल्दी से भाई को उठा दें। ये कहकर मैं फौरन से अम्मी के पास आ गई। अम्मी की सांसें बहुत धीमे चल रही थी। मैंने अम्मी का सर उठाकर गोद में रख लिया और उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, मगर अम्मी मुसलसल गनूदगी में जा रही थी और भाई अभी तक नहीं आए थे। मैं दोबारा से अम्मी का सर तकिए पर रखकर भाई के कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाजा दोबारा बंद हो चुका था। मैंने हैरत से कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखा और दोबारा से दरवाजा बजाने लगी। दूसरी जानिब अम्मी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। इस बार भाई की आंख खुल गई। मुझे यूं घबराए कमरे के बाहर खड़े देखा तो फौरन ही बाहर आ गए। मैंने भाभी को नजरअंदाज करके भाई से कहा कि अम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल ले चले। ये कहते हुए मैं बुरी तरह से रोने लगी। भाई फौरन ही अम्मी के कमरे के जानिब गए। जब भाई ने अम्मी की बिगड़ती हालत देखी तो फौरन ही अम्मी को अस्पताल ले गए। अम्मी बेहोश हो चुकी थी। मैं मुसलसल रो रही थी और दुआएं कर रही थी कि मेरी अम्मी को कुछ ना हो। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर अम्मी को इमरजेंसी में ले गए। मैं और भाई बाहर खड़े उस बंद दरवाजे को तकते रहे। इस बंद दरवाजे के पार हम दोनों की जन्नत थी। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। हम दोनों उन्हीं की जानिब लपके तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि आप लोग दुआ करें, हो सकता है कि वो ठीक हो जाएं। डॉक्टर की बात सुनकर मैं ज़ारो कतार रोने लगी। मेरी अम्मी की जिंदगी खतरे में थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। भाई भी अपनी जगह बेहिस खड़ा था। सुबह तक हम दोनों जागते रहे। एक पल के लिए भी हमारी आंख नहीं लगी थी। सुबह डॉक्टरों ने जो खबर हमें दी उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मुझ पर पहाड़ गिर गया था। मेरी अम्मी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी। मेरे पैरों में खड़े होने की सकत खत्म हो चुकी थी। मैं अपने अब्बू को खो चुकी थी और आज अपनी माँ को भी खो दिया था। भाई अम्मी की मैयत घर लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे और मैं बस खाली खाली नजरों से इधर उधर देख रही थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। मेरे सोचने समझने की सारी सलाहियतें सल्ब हो चुकी थी। कुछ देर बाद भाई मेरे पास आए और मुझे घर लेकर गए। घर आकर अम्मी की मैयत मेरे सामने रखी थी
और मेरी आंखों से आंसू बिल्कुल खुश्क हो रहे थे। मैं बस यकटक अम्मी की जानिब देख रही थी। मुझे लग रहा था कि अम्मी अभी उठेंगी और मुझसे ढेरों बातें करेंगी, मगर मेरी अम्मी तो अब्दी नींद सो चुकी थी और अब वो जिस जहान में गई थी वहां से लौटकर कभी नहीं आने वाली थी। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा था, मगर मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं टपक रहा था। वहां मौजूद औरतें मुझे रुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई भी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पत्थर की बन चुकी हूँ। मेरे आसाब पत्थर बन चुके थे। अम्मी की मौत ने मुझे ऐसा सदमा दिया था कि मैं सांस तो ले रही थी मगर जिंदों में शुमार नहीं थी। मेरे ही सामने भाई ने आकर अम्मी की मैयत को कंधों पर उठा लिया था। उन्हें आखिरी आरामगाह की जानिब ले जाया जा रहा था और मैं बस अपनी आंखों में दुनिया जहान की वहशत समाये उन्हें खुद से दूर जाता देख रही थी। जैसे ही अम्मी की मैयत इस कमरे से निकली, मैं गिरकर बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो अम्मी को मनो मट्टी तले दफनाया जा चुका था, मगर होश आने के बाद भी मेरी सारी हिस्सें सोई हुई थी। मैं कुछ भी सोचने समझने से कासिर थी। खाला मेरे बराबर में बैठी हुई थी। आज की रात मुझ पर बहुत भारी थी। मैं पहली बार अम्मी के बगैर रात गुजारने वाली थी, वरना इससे पहले मैं कभी भी अम्मी के बगैर नहीं सोई थी। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी अम्मी मुझे छोड़कर जा चुकी हैं, मैं इस कदर रोई कि मुझे अपना वजूद उन आंसुओं में बहता हुआ महसूस हुआ। खाला और भाई मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर मेरे दिल को चैन ही नहीं मिल रहा था। मैं एक बार फिर से होशो खिरत से बेगाना हो चुकी थी। माँ की मौत के सदमे ने जैसे मुझे पागल सा कर दिया था। अम्मी को गए 10 दिन हो गए थे और मेरी शादी में 20 दिन रह गए थे। एक रात खाला हमारे घर आई और उन्होंने कहा कि अचानक ही फरहान को 1 साल के लिए बाहर जाना है। अगर अभी वो बाहर नहीं गए तो शायद ऐसा सुनहरी मौका उन्हें फिर कभी नहीं मिले। खाला चाहती थी कि भाई 2 दिन के अंदर ही मेरी शादी कर दे, क्योंकि तीसरे दिन फरहान को जाना था। मगर अभी तो भाई खुद ही अम्मी की मौत के सदमे से नहीं संभले थे। मगर फिर भी भाई मेरी रुखसती करने को राजी हो गए, मगर भाभी ने साफ मना कर दिया और भाई से कहा कि इतनी क्या जल्दी है रुखसती करने की, अभी माँ को मरे महज 10 दिन हुए हैं, लोग बातें बनाएंगे। भाभी की बात भाई को सही लगी और भाई ने खाला को साफ मना कर दिया और खाला से कह दिया कि जब फरहान वापस आ जाएंगे तो वो मेरी रुखसती कर देंगे। खाला अपना सा मुंह लेकर रह गई। खाला ने बहुत जोर दिया कि किसी तरह भाई मेरी रुखसती पर राजी हो जाएं, मगर जाने भाभी ने उनसे क्या कहा, भाई मेरी रुखसती करने पर राजी नहीं हुए। इसी तरह से 2 दिन गुजर गए और तीसरे दिन फरहान ये मुल्क छोड़कर 1 साल के लिए चले गए। फरहान तो चले गए, मगर पीछे से भाभी ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। भाभी मुझसे सारा दिन घर के काम करवाती और ताने देती। अम्मी के जाने के बाद भाभी बिल्कुल आजाद हो चुकी थी। वो जैसा चाहती मुझसे वैसा सलूक करती थी। भाई सारा दिन काम पर होते थे, उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि उनके पीछे घर में क्या हो रहा है। रात में भाई के घर आते ही भाभी काम करने लग जाती और भाई के सामने बिल्कुल ही बदल जाती थी। मैं हैरत से भाभी को देखा करती थी, मगर मुंह से कुछ कहकर अपनी शामत नहीं भुलवाना चाहती थी। इसी वजह से भाभी की सारी ज्यादतियां बर्दाश्त कर रही थी। भाभी ने मेरे चुप रहने को मेरी कमजोरी जाना और वक्त के साथ साथ मजीद शेर होती गई। एक रात भाई काम से वापस घर आए तो उस वक्त मैं कमरे में मौजूद थी। भाई अपने कमरे में थे। एकदम ही मुझे भाई के चीखने की आवाज आने लगी। इससे पहले भाई की कभी भी ऊंची आवाज में घर में बात नहीं की थी। मैं घबराकर अपने कमरे से निकली। मुझे लगा कि शायद भाई और भाभी की किसी बात पर लड़ाई हो गई है, मगर जब मैं अपने कमरे से बाहर गई तो भाई इंतहाई गुस्से से मुझे घूरने लगे थे। मैं भाई को अपनी जानिब इतने गुस्से में देखते पाकर सहम गई और अपनी जगह ही जम गई। भाई ने मुझसे पूछा कि तुम शाम को छत पर किससे बातें कर रही थी।
भाई इस कदर गुस्से में थे कि उनकी धाड़ पूरे घर में गूंजी थी। मैं हैरानी से भाई की शक्ल देखने लगी, क्योंकि आज तो मैं छत पर गई ही नहीं थी। बल्कि हकीकत तो ये थी कि मैं छत पर बहुत ही कम जाती थी। मुझे सारा दिन घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि मैं किसी और तरफ ध्यान दे सकूं। मैंने कुछ ना समझते हुए भाई से कहा, मैं तो छत पर गई ही नहीं। मेरी बात सुनकर भाई एकदम फिर से मुझ पर चीखे, तुम झूठ भी बोलने लगी हो। सब सच बताओ, तुम्हारा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है जिसके साथ तुम रोज छत पर जाके बातें करती हो। इस बार सही मायनों में मेरे कदमों तले से जमीन निकली थी। मैंने भाई से नजरें हटाकर भाभी के जानिब देखा। भाभी इत्मीनान से सोफे पर बैठी ये सारा मंजर देख रही थी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, आप ही भाई को बताएं कि मैं छत पर जाती ही नहीं हूँ। ये कहते हुए मेरी आवाज रंध गई थी। मेरी बात सुनकर भाभी ने तमस्खुर उड़ाती नजरों से मेरी जानिब देखा और फिर भाई की तरफ देखकर कहने लगी कि देखा, मैंने कहा था ना ये अपनी बात से मुकर जाएगी। मैंने बौखलाकर भाभी की जानिब देखा। मैंने भाभी से कहा कि ये आप क्या कह रही हैं, मगर भाभी ने मुकम्मल तौर पर मुझे नजरअंदाज किया और भाई से कहने लगी, इसे मैंने छत पर जाने से और उस लड़के से मिलने से कई बार रोका, मगर इसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि ये तो मुझसे ही बदतमीजी करने लग जाती। इसी वजह से मैंने बहुत मजबूर होकर आपसे ये बात की है। ये कहते हुए भाभी अफसुर्दा चेहरा बनाकर दोबारा से सोफे पर बैठ गई और मैं हैरानी से कभी भाभी को देखती तो कभी भाई को देखती। मेरा जहन सुन्न हो चुका था। मुझे भाभी से ये उम्मीद नहीं थी कि भाभी इतना बड़ा झूठ बोलेंगी, मगर भाभी बहुत इत्मीनान से झूठ बोल चुकी थी और भाई उनकी बात पर यकीन भी कर चुके थे। भाई ने मुझसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती यूं किसी लड़के से ताल्लुकात बढ़ाते हुए, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी बात तय हो चुकी है, मगर फिर भी तुम हमारे चेहरों पर कालक मल रही हो। ये कहते हुए भाई का तैश से बुरा हाल था और मैं सफेद चेहरे के साथ खड़ी भाई को देख रही थी। मेरी जबान ने मेरा साथ देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। मैं तो अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही थी। भाई भाभी की बातों पर ईमान ला चुके थे और मुझे पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। मैं बस खाली जहन के साथ उन्हें देख रही थी। उनके अल्फाज किसी कोड़े की मानिंद मुझ पर बरस रहे थे। मैं पल भर में ही बदकिरदार ठहरा दी गई थी। मेरा सगा भाई पल भर में ही मुझसे आंखें बदल गया था। उसे मुझसे ज्यादा अपनी बीवी की बात पर यकीन था। अगले ही दिन भाई ने खाला से बात की कि वो मेरी रुखसती करना चाहते हैं। इस बात पर खाला ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, फरहान 1 साल के लिए जा चुका है, अब वो 1 साल से पहले वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब 1 साल बाद ही शादी होगी। इस बात पर भाई इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने फरहान से मेरा रिश्ता तोड़ दिया और खाला को साफ जवाब दे दिया कि उन्हें मेरी शादी जल्द अज जल्द करनी है, इसलिए अब वो मेरी शादी कहीं और कर देंगे। जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मैं अपने भाई के पैरों में गिर गई और उससे कहा कि मुझ पर ये जुल्म ना करो, मुझे यूं बिना गलती के सजा ना दो, मगर वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और मैं उसे अपनी बेगुनाही का यकीन नहीं दिला पा रही थी। मेरा भाई मुझसे मुकम्मल तौर पर बदजन हो चुका था और ये सब कुछ करने वाली मेरी भाभी थी। खाला ने भाई को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर भाई ने उनकी एक नहीं सुनी और फरहान से मेरा रिश्ता खत्म कर दिया। उस दिन मैं बेतहाशा रोई थी, मगर मेरे रोने से भी भाई का दिल नहीं पिघल सका था। मैं फरहान से राब्ता भी नहीं कर सकती थी क्योंकि भाई ने मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया था। मुझ पर दरवाजे हर तरफ से बंद कर दिए गए थे। भाई ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा रिश्ता तय भी कर दिया। मैं लाख रोई, चीखी चिल्लाई, मगर भाई पर कुछ असर ना हुआ। भाई को लग रहा था कि अगर उन्होंने जल्द अज जल्द मेरी शादी नहीं की तो मैं उनकी इज्जत खाक में मिला दूंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मुझे भाई की नजरों में भाभी गिरा चुकी थी। 1 हफ्ते बाद मेरा निकाह था
और मैं अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खोने जा रही थी। मैं कुछ नहीं जानती थी कि फरहान को इन सब के बारे में कुछ खबर है या नहीं, मगर मैं फिर भी फरहान का इंतजार कर रही थी। एक मासूम सी उम्मीद थी कि शायद फरहान आकर मेरी शादी होने से रोक दे, मगर पूरा हफ्ता पलक झपकते गुजर गया। फरहान ना आया और मुझे जबरदस्ती किसी और के निकाह में दे दिया गया। भाई ने बिल्कुल खामोशी से मेरी शादी कर दी थी। यहाँ तक कि रुखसती से पहले भाई ने मेरे सर पर हाथ तक ना रखा। मैं उम्मीद भरी नजरों से भाई को देखती रही कि शायद वो आगे बढ़कर मुझे गले लगाएं, मगर भाई मुझसे मुंह मोड़े खड़े रहे। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार भी मेरी जानिब नहीं देखा। मैं रोती हुई रुखसत हो गई। मेरी मोहब्बत मुझसे छूट गई थी। फरहान नहीं आया और मैं किसी और के घर आ गई। मेरे ससुराल में मेरी सास और शौहर के अलावा कोई नहीं था। जब मैं अपने ससुराल में दाखिल हुई तो घर को देखकर मैं शशतर रह गई। ये घर महज 2 कमरों पर मुश्तमिल था और बहुत ही छोटा था। दोनों कमरों के सामने एक छोटा सा सहन था जो उस वक्त कार कबाड़ से भरा हुआ था। मेरी सास ने मुझे ले जाकर मेरे कमरे में बिठा दिया। भाई ने जो भी सामान मुझे जहेज में दिया था उसमें से कुछ भी मेरे कमरे में मौजूद नहीं था, बल्कि कमरे के बीच में एक पुराना सा पलंग रखा था जिस पर मेरी सास ने मुझे बिठाया था, और एक कोने में छोटी सी अलमारी थी। बस ये 2 ही चीजें इस कमरे में रखी हुई थी। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बहने को बेताब थे। पहले तो मेरी शादी जबरदस्ती की गई और अब ऐसे घर में की गई जो कहीं से भी हमारे हम पल्ला नहीं थे। इस घर में गुर्बत चीख चीख कर अपनी मौजूदगी का पता दे रही थी। मैं अपने आंसुओं को बेमोल होने से बचाने के लिए बार बार अपनी पलकों को झपक रही थी, मगर फिर भी मेरी आंखों के गोशे भीगने लगे थे। मेरी सास का लहजा मेरे साथ इंतहाई रूखा था। उन्होंने अब तक मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। मैं कमरे में सर झुकाए बैठी थी। कुछ देर बाद मेरी सास दोबारा से कमरे में आई। उन्होंने मुझे यूं सर झुकाए बैठे देखकर कहा कि तुम्हारी भाभी ने पहले ही मुझे तुम्हारे सारे करतूत बता दिए हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि इस घर में खामोशी से रहना। अगर ज्यादा आवाज निकालने की कोशिश की तो यही जान से मार दूंगी। मैंने एक झटके से सर उठाकर अपने सामने खड़ी औरत को देखा। मेरी भाभी ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं बस हैरत से उनके लहजे से ज्यादा उनके लफ्जों पर गौर कर रही थी। चंद घंटों के दुल्हन को कौन ऐसे जान से मारने की धमकी देता है? एक सर्द सी लहर मेरे रगों पैर में दौड़ गई थी। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा था और वो औरत सामने खड़ी मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैं बेसाख्ता ही रोने लगी थी। मुझे शादी के चंद घंटों बाद ही ऐसे रवैये की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे मेरी अम्मी याद आने लगी थी। अगर आज वो जिंदा होती तो मेरे साथ हरगिज़ भी ये सब नहीं होता। मेरी सास कमरे से बाहर जा चुकी थी और मैं अपनी किस्मत पर रोने के लिए तन्हा बैठी रह गई थी। अभी तक मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। मैं खूब जी भर कर रोई। जब मेरा दिल कुछ हल्का हुआ तो मैं अपने आंसू पोंछकर खामोश हो गई। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं उस वक्त बस सोना चाहती थी, मगर इसी असना में कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शौहर अंदर आया। मैं फौरन सीधी होकर बैठ गई और नजरें झुका ली। मेरा शौहर दरवाजा बंद करके सीधा पलंग की जानिब आया और काफी देर तक खड़ा मुझे घूरता रहा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नजरें उठाकर उसे देख सकूं। कुछ देर बाद मेरा शौहर मेरे सामने आकर बैठ गया और एक ही झटके में मेरे चेहरे से घूंघट खींचकर उतार दिया। इस अचानक उफ्ताद पर मैं बौखला गई और सर उठाकर उसकी जानिब देखा। वो आंखों में तैश लिए मुझे ही घूर रहा था और मैं सहमी हुई नजरों से उसकी जानिब देख रही थी। डर के मारे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। इससे पहले कि मेरा शौहर मुझे कुछ कहता, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई।
मेरा शौहर झुंझुलाया हुआ उठा और जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मेरी सास फौरन ही अंदर आ गई और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुमने कमरे का दरवाजा क्यों बंद किया? मेरा शौहर बिल्कुल खामोश खड़ा, कुछ ना बोला। मेरे ही सामने सास ने मेरे शौहर से कहा कि तुम भी अपनी बीवी के करतूत जान लो। शादी से पहले जाने किस किस से ताल्लुक जोड़े बैठी थी। इसकी भाभी ने इसे किसी लड़के से मिलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। जब भी यूं आनन फानन इसकी शादी कर दी और हमारे पल्ले बांध दिया। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर मेरे शौहर ने गैज़ो गज़ब से मुझे घूरा। मैं डर के मारे सर झुकाए खड़ी थी। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं नजरें उठाकर उनकी जानिब दे सकूं। पहले ही दिन ससुराल में मुझसे इतना बुरा सलूक किया जा रहा था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी भाभी ने मुझे यहाँ भी नहीं बख्शा था, मेरे लिए यहाँ भी गड्ढा खोद दिया था। वो लोग मुझे ऐसी नजरों से देख रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। कुछ ना करके भी मैं बदकिरदार ठहराई जा रही थी और भाभी झूठ बोलकर भी सच्ची थी। मेरा शौहर अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से से आगे बढ़ा और मेरे बालों को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। दर्द से मेरे मुंह से कराह निकल गई। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में जाहो जलाल साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी सफाई में कुछ बोलने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही मेरे शौहर का हाथ उठा और मेरी बोलती बंद कर गया। मेरे मुंह पर थप्पड़ इस कदर शिद्दत से मारा गया था कि मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा नजर आया। मगर फिर मेरे शौहर ने उसी पर बस नहीं की। वो मेरे बाल मुट्ठी में जकड़े मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहा था और मैं चीख भी नहीं पा रही थी। मेरी चीखें मेरे हलक में ही दब कर रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे शौहर को जुनून सवार है। उसने मुझे फर्श पर गिरा दिया और लातों से मारने लगा। मुझ में अब मज़ाहमत करने की भी हिम्मत खत्म हो गई थी। मैं फर्श पर लेटी खामोशी से मार खा रही थी, यहाँ तक कि खुद को बचाने की भी कोशिश नहीं कर रही थी। करीब था कि मैं बेहोश हो जाती। मेरी सास ने आगे बढ़कर अपने बेटे को रोका और उसे लेकर कमरे से बाहर चली गई और मैं वहीं लेटी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। मेरी सास ने पलटकर मेरी तरफ देखा तक नहीं था। जाने कितना ही वक्त गुजर गया, मेरे जिस्म में हिलने की भी हिम्मत बाकी नहीं बची थी। जिंदगी में पहली बार मुझ पर किसी ने हाथ उठाया था, और ना सिर्फ हाथ उठाया था बल्कि मुझे बुरी तरह से मार मार के अधमुआ कर दिया था। अपनी किस्मत को रोते रोते जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ पता नहीं चल सका। मैं वहीं फर्श पर लेटी सो चुकी थी। मेरी माँ ने मुझे किस कदर लाडों से पाला था। अगर आज वो जिंदा होती तो मेरी ये हालत देखकर ही मर जाती। सुबह हो चुकी थी, मगर मैं यूं ही फर्श पर लेटी थी। मुझ में उठने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। यकदम ही कमरे का दरवाजा खुला और मेरी सास अंदर आई। अंदर आते ही उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें हम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं लाए हैं। कब तक यहाँ पड़ी अपनी मोहब्बत का शौक मनाती रहोगी? उठो और हमें नाश्ता बना कर दो। मैंने आंखें खोलकर अपनी सास की जानिब देखा और उठकर बैठ गई। मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मैंने अपनी सास की जानिब देखा और सोचा कि शायद इनके सीने में दिल ही नहीं है। रात को इनका बेटा मुझे इतनी बुरी तरह से मार रहा था और इन्होंने उसको रोका तक नहीं था, और अब सुबह ही मुझे काम दे रही थी, जबकि बहुत अच्छे से जानती थी कि रात को मार खाने के बाद मेरी क्या हालत हो रही होगी। मगर उन्हें फिर भी मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा था। मैं आंसू साफ करते हुए उठी और कपड़े बदलने चली गई। जब मैं कपड़े बदल कर बाहर आई तो मेरी सास अब भी वहीं मौजूद थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ बावर्ची खाने में चलो ताकि मैं तुम्हें सारा काम समझा दूं। मैं सर झुकाकर उनके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल आई। मेरी सास मुझे लेकर सीधा बावर्ची खाने में गई और मुझे नाश्ता बनाने पर लगा दिया। मैं अपने आंसू पीती खामोशी से काम करने लगी।
मैं यूं बेमोल हो जाऊंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा शौहर पूरी रात कमरे में नहीं आया था और ना ही मुझसे कोई बात की थी। अगले दिन कमरे में आया तो खामोश बैठा रहा। मैं भी अपनी जगह खामोश बैठी थी, मगर फिर अचानक ही बैठे बैठे मेरा शौहर हंसने लगा और जोर जोर से तालियां बजाने लगा। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी, मगर वो मेरी मौजूदगी को यकसर भुलाए खुद में मगन था। मुझे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ, मगर दिखने में तो मेरा शौहर बिल्कुल ठीक ठाक था और अब ऐसी हरकतें कर रहा था। मैं फौरन से अपनी जगह से खड़ी हो गई और मुतवाहिश नजरों से उसे देखने लगी। फिर वो उठा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा कि तुम भी धोखेबाज हो, तुम सब मुझे धोखा देती हो, पागल समझते हो तुम सब मुझे। और मेरे करीब आने लगा। वो जितना मेरे करीब आ रहा था मैं उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे पीछे दीवार थी। मैं इनसे ज्यादा उससे दूर बिल्कुल नहीं हो सकती थी, मगर वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। मैं समझ गई थी कि मेरे इम्तिहान का वक्त शुरू हो चुका है। मेरा शौहर अपना हक लेने आ गया था। इससे पहले ही मेरा शौहर कोई और पेशरफ्त करता, कमरे का दरवाजा एक जोरदार धाड़ के साथ खुला। मैं अपनी जगह उछल गई और मेरा शौहर भी मुझसे फौरन ही दूर हो गया। कमरे के दरवाजे पर मेरी सास खड़ी थी और इंतहाई गुस्से से अपने बेटे को घूर रही थी। फिर वो कमरे के अंदर आई। मैं नासमझी से उन्हें देख रही थी। उनका इस कदर गुस्सा होना मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी सास आगे बढ़ी और मेरे शौहर को थप्पड़ लगा दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और मैं हैरत के साथ ये मंजर देखने लगी। मेरी सास ने अपने बेटे से कहा कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि इस लड़की के करीब नहीं जाना, तो फिर तुम क्यों इसके करीब जा रहे थे? और मेरा शौहर बिल्कुल सर झुकाए उनके सामने खड़ा था, यहाँ तक कि उनसे आंखें भी नहीं मिला रहा था। मेरे शौहर का रवैया मुझे पल पल हैरत में डाल रहा था। मैं समझ गई थी कि जरूर मेरे शौहर ज़हनी तौर पर बीमार हैं, वरना कोई शख्स ऐसा रवैया नहीं रखता। मेरे शौहर ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे माफी मांगने लगे, यहाँ तक कि माफी मांगते हुए रोने लगे थे। मेरी सास ने मजीद 2 थप्पड़ अपने बेटे को मारे और कमरे से निकल गई। मेरा शौहर, जो चंद लम्हे पहले बुरी तरह से रो रहा था, यकदम ही मेरी जानिब घुमा और मुझे बुरी तरह से मारने लगा और साथ साथ ये कहता जाता कि तू गंदी औरत है। मैंने उससे बचने की बहुत कोशिश की, मगर उससे जितना बचने की कोशिश करती वो उतनी ही जोर से मुझे मारता था। अब ये हर वक्त का मामूल हो गया। अगर कभी मेरा शौहर मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मेरी सास उस पर हाथ उठा लेती और फिर सारा गुस्सा मेरा शौहर मुझ पर निकालता था। इस माहौल से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मैं अपने मैके जाना चाहती थी, मगर मुझे मैके जाने की भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छे से पहचान गई थी कि अब मेरा मैके में कोई नहीं है। वो मेरे साथ जो भी सलूक करेंगी कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब ही वो लोग मुझसे जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे। मेरा शौहर हर वक्त मुझ पर हाथ उठाता, यहाँ तक कि रोज रोज उसकी मार खाकर मेरे जिस्म पर नील के निशान बन गए थे, क्योंकि कभी वो मुझे बेल्ट से मारता तो कभी पाइप से मारने लगता था। मैं लाख चीखती, दुहाइयां देती, मगर उन लोगों को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता था। शादी के बाद से एक बार भी मेरा भाई मुझसे मिलने तक नहीं आया था, मगर मुझे इस बात का यकीन था कि अगर वो मेरी हालत देख ले तो एक लम्हे के लिए भी मुझे यहाँ नहीं रहने देगा। मगर जाने भाभी ने उसे क्या कहकर रोका हुआ था। मैं वहां दिन रात अपने भाई का इंतजार करती, मगर वो एक बार भी नहीं आया। यहाँ तक कि मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी और मैंने उसके आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अपनी बीवी की बातों में आकर मेरा भाई मुझसे इस कदर बदजन हुआ कि जिसके हलक से मेरे बगैर नवाला नहीं उतरता था, आज उसे देखे न जाने कितने दिन गुजर चुके थे।
अब तो मुझे वक्त का हिसाब भी भूल चुका था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरी सास मेरे कमरे में आई और उनके हाथ में एक जोड़ा था। उन्होंने वो कपड़े मेरी जानिब बढ़ाए और मुझसे कहने लगी कि जल्दी से ये पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने नासमझी से उनकी जानिब देखा, मगर वो उजलत में कमरे से निकल गईं। मैंने उस जोड़े को देखा तो वो बहुत ही अजीब जोड़ा था, मगर मैं उसे पहनकर तैयार हो गई, क्योंकि कुछ भी सास की मर्जी के खिलाफ करके मैं खुद ही अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहती थी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर आई, मेरी जान निकलने लगी, क्योंकि सहन में कई आदमी मौजूद थे। मेरे बाहर आते ही उन सब ने हविस भरकर मेरी जानिब देखा था। मेरे कदम अपनी जगह ठुठक गए थे। मैं एक लम्हे में उन लोगों की नजरों को पहचान गई थी। मैं वापस अपने कमरे में जाना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे आवाज देकर अपने पास बुलाया। मैं झिझकती हुई उनके पास गई। मेरी सास ने उन मर्दों की जानिब देखा और उनसे कहा कि जो भी मुझे इसके ज्यादा पैसे देगा, इसे वही यहाँ से ले जा सकता है। अपनी सास के मुंह से ये बातें सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने घबराकर अपनी सास की तरफ देखा, मगर वो बहुत ही मुतमईन सी अपनी जगह बैठी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझसे सुनने में कोई गलती हुई हो, मगर मुझसे सुनने में कोई गलती नहीं हुई थी। मेरी सास मेरी कीमत लगा रही थी। वो मुझे अच्छे से पहचान गई थी कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इस दुनिया में एक भाई है जो मुझे पूछता नहीं है। पूरी तरह से इत्मीनान करने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया था। मैंने अपनी सास से कहा कि ये आप क्या कर रही हैं, जिस पर मेरी सास ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी कि तू पहली नहीं है जिसके साथ ये सब हो रहा है। इससे पहले मैं अपने बेटे की 2 शादियां करवा चुकी हूँ। उनका भी तेरी तरह इस दुनिया में कोई नहीं था, तो मैंने उन्हें बेच दिया। रात को जब मेरा बेटा घर आएगा तो उससे यही कहूंगी कि तेरी बीवी भाग गई है। ये कहकर मेरी सास हंसने लगी, तो वहां मौजूद मर्द भी बेहंगम तरीके से हंसने लगे। सास के ये अल्फाज किसी चाबुक की तरह मेरी रूह पर पड़े थे। मैं लावारिस तो नहीं थी कि जिसके साथ ये सलूक हो रहा था। मैं अपनी सास के पैरों में गिर गई और उनसे रहम की भीख मांगने लगी, मगर वो पत्थर बनी बैठी थी। उनमें से एक मर्द ने मेरे सबसे ज्यादा पैसे दिए तो मेरी सास ने मुझे उसके हवाले कर दिया। उस आदमी ने सख्ती से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी सास कहने लगी कि 2 बीवियों की बेवफाई ने मेरे बेटे को नफसियाती मरीज बना दिया। अब तू भी उसे धोखा देकर यहाँ से जा रही है, जाने अब उसकी हालत कैसी होगी। ये कहकर मेरी सास हंसने लगी। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। वो मेरी आंखों में उभरते सवाल को पहचान गई और मुझसे कहने लगी कि ये मेरा सौतेला बेटा है। इसकी माँ ने मेरे शौहर से शादी कर ली थी, जिसकी सजा मैं इसे दे रही हूँ। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। ये दुनिया इस कदर बुरी थी, इस बात का मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया था। इससे पहले कि वो आदमी मुझे लेकर वहां से निकलता, घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और फिर मैंने घर के अंदर अपने भाई को दाखिल होते हुए देखा था। मैं हैरत से सांस लेना भूल चुकी थी और उसके पीछे मैंने फरहान को देखा। मेरी सांस में सांस आई थी। भाई अपने साथ पुलिस को लेकर आया था। पुलिस देखकर वो सारे आदमी वहां से भागने लगे थे। मेरा भाई फौरन ही मेरी जानिब आया। वो आदमी मेरा हाथ छोड़कर वहां से भाग रहा था, मगर मैं अपनी जगह पत्थर का बुत बनी खड़ी थी। मेरे भाई ने मुझे अपने सीने से लगा लिया, मगर फिर भी मेरे वजूद में कोई जंबिश ना हुई। फरहान भी जख्मी नजरों से मेरी जानिब देख रहा था। फिर मैंने घर में अपने शौहर को दाखिल होते हुए देखा था और फिर मैं अपने होशो खिरत से बेगाना हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं भाई के घर में थी। मैं एकदम ही हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठी। मैं मुतवहिश नजरों से इधर उधर देखने लगी। मुझे होश में आता देखकर भाई फौरन से मेरे करीब आया। मैं अपने भाई के गले लगकर बेसाख्ता रोने लगी। मेरे शौहर ने एक रात पहले अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थी।
उसने मेरे भाई को इत्तला दी थी, जब ही मेरे भाई ने बर वक्त आकर मुझे बचाया था। मेरे शौहर को नफसियाती मरीज उसकी मां ने बनाया था। मेरा शौहर तलाक के कागजात मेरे भाई को देकर जा चुका था, क्योंकि भले ही उसने मुझे बचा लिया था, मगर उसकी नजरों में मैं अब भी बदकिरदार थी। मैं अपने भाई के घर थी, भाभी मेरे सामने नहीं आती थी और अब तक उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। मगर एक दिन जब मैं अपने कमरे में थी, भाभी मेरे कमरे में आ गई। मैं उन्हें अचानक अपने सामने देखकर सहम गई, मगर भाभी आते ही मेरे पैरों में गिर गई और मुझसे माफी मांगने लगी। मैं खामोश खड़ी उन्हें देखती रही। भाभी ने मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया और अब इस बात की सजा मैं भुगत रही हूँ। मैंने नासमझी से भाभी की तरफ देखा। भाभी कहने लगी कि मेरी 2 साल की बच्ची को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो अब कभी चल नहीं सकेगी। मैं हैरत से भाभी को देख रही थी। मकाफाते अमल क्या होता है ये मुझे समझ आ गया था। भाई दरवाजे में खड़ा अपने आंसू साफ कर रहा था और उनके पीछे फरहान खड़ा था। भाभी रोते हुए कमरे से जा चुकी थी। भाई भी वहां से चला गया, मगर फरहान अपनी जगह से नहीं हिला था। वो बस मुझे देखे जा रहा था। फिर वो कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसे देखकर नजरें फेर ली। वो मेरे करीब आया और मेरे कान में झुककर कहने लगा, इस हफ्ते तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने तड़प कर उसकी जानिब देखा। मैंने एक लम्हे के लिए भी भाभी की बात पर यकीन नहीं किया था, मगर जब तक मैं वापस आया मेरी दुनिया ही लुट चुकी थी। तुम तो किसी और की हो गई थी, मगर अब मैं तुम्हें फिर से अपना बनाऊंगा और तुम्हारे सारे जख्मों को भर दूंगा। ये कहकर उसने मेरे हाथ पर बने नील के निशान को देखा। मैं बेसाख्ता रोते हुए उसके कंधे से सर टिका गई।